پڑھ کر جس کی شان انا اعطیناک الکوثر، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، آمنہ کے لال، عبد المطلب کے پیارے، گائی حلیمہ کے تارے، ہم غراب غریبوں کے غم گسار، بے سہاروں کے سہارا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیہ و درود کی ڈالی نشاور کرے اور پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و قلوبنا و مولانا و ملجانا محمد و بارک علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میں نے قرآن مقدس کی اس مقدس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ یہ وسیلہ کس چیز کا نام ہے؟ اسی کو اردو میں ذریعہ کہتے ہیں۔ آپ کو یہاں سے کہیں کا سفر کرنا ہو، آپ بائی پلین جائیں گے، بائی ٹرین جائیں گے، کسی نہ کسی چیز کا سہارا لیں گے۔ اسی طریقے سے اسی کا نام وسیلہ ہے عربک میں، اسی کو اردو میں ذریعہ کہتے ہیں۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور جب اللہ تک پہنچنے کا ارادہ کرو تو تم اللہ والوں کا وسیلہ تھام لو، اللہ والوں کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اسی میں سے ایک بزرگ سیدی سرکار عبد الرشید علیہ الرحمہ ہے، جس کے بارگاہ میں آج ہم بیٹھ کر ان کے فیوض و برکات کو حاصل کر رہے ہیں۔ یہ وہ اللہ والے ہیں جن کی دامن کو تھام کر ہم جنت کا راستہ پا سکتے ہیں۔ قرآن سے پوچھئے اے قرآن، وہ کون لوگ ہیں جس کے دامن کو ہم تھام لیں، جس کے راستے کو ہم پکڑ لیں؟ قرآن کہتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ نبیوں کی جماعت ہے، وہ صدیقین کی جماعت ہے، وہ صالحین کی جماعت ہے۔ میرے محترم، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو نبیوں کے دامن سے وابستہ ہو جائے گا، جو صدیقین کے دامن سے وابستہ ہو جائے گا، جو صالحین کے دامن کو تھام لے گا، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ میرے محترم، تب تو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو اسواب تنہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے۔ عزیزان باوقار معزز ملت اسلامیہ، بات عشق کی چلی ہے، یہ خانوادے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں سید شکیل الزما قبلہ علیہ قبلہ کے قدم ناز کا بوسہ لے کر میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ یہ آستانہ پر بیٹھ کر ہم فیوض و برکات حاصل کر رہے ہیں۔ بات عشق کی آئی ہے، آج کے مدینہ کی گلیوں کو دیکھیے، اسی مدینہ المنورہ میں، اسی مکہ المکرمہ میں کوئی ابو بکر نام کا ایک انسان ہے جو صدیق اکبر صداقت کا تاجدار عشق میں بن گیا ہے۔ اسی مدینہ المنورہ کی دھرتی پر کوئی عثمان نام کا انسان ہے جو سخاوت کا سب سے بڑا بادشاہ بن گیا ہے۔ علی نام کا انسان ہے جو ہمت و جمع مردی کا سب سے بڑا بادشاہ بن گیا ہے۔ کوئی عمر نام کا انسان ہے جو انصاف و حکمت کا سب سے بڑا بادشاہ بن گیا ہے۔ انصاف والا بنایا کون ہے؟ ابو بکر کو صداقت کا تاجدار کی بنایا کون ہے؟ عثمان غنی کو سخاوت کا تاجدار بنایا کون ہے؟ تو عشق کی بات ہے، جب مصطفیٰ کا عشق سینے میں ہوتا ہے کوئی صدیق اکبر بن جایا کرتا ہے، جب مصطفیٰ کا عشق سر چڑھ کر بولتا ہے تو کوئی وقت کا عمر فاروق اعظم بن جاتا ہے، جب مصطفیٰ کا عشق سینے میں پیوست ہوتا ہے کوئی تلوار لے کر عمر قتل کرنے آئے جب جاتا ہے تو اسلام کا کلمہ پڑھ کر جاتا ہے۔ دنیا کو یہ بتا دیا اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اسلام کی گردن پر حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، عرس مقدس، عرس مقدس، عرس رشیدی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے محترم، میں آپ کو بتاتا چلوں، بات عشق کی چلی ہے، جب وہی عشق سر چڑھ کر بولتا ہے ہندوستان کی دھرتی پر تو کوئی سنجر کی دھرتی سے پیدل چل کر آتا ہے اور ہندوستان کی دھرتی پر غریب نواز بن جاتا ہے، 90 لاکھ لوگوں کا کلمہ پڑھا کر دائرہ اسلام میں داخل کر دیتا ہے۔ جہیں وہی مصطفیٰ کا عشق سر چڑھ کر بولتا ہے تو کوئی بریلی کی سرزمین سے نکلتا ہے، جب اسلام کی عظمتوں پر حملہ کیا جا رہا تھا، جب مصطفیٰ کو اپنے جیسا کہا جا رہا تھا، جب عشق سر کر چل کر بولتا ہے تو بریلی کی سرزمین سے مفتی نقی علی خان کے گھر سے ایک بیٹا پیدا
कर और दुनिया को ये बता देता है चर्चा किसी का होगा, जिक्र कहीं किसी की महफिल सजेगी, लेकिन जब मुस्तफा का इश्क सर चढ़ कर बोलेगा और मुस्तफा की तारीफ होगी, वहाँ इमाम अहमद रजा का नाम आएगा, वहाँ आला हजरत की बात की जाएगी, वहाँ मुफ्ती आजम के तखरीर हालत की बात की जाएगी। आखिर वजह क्या है, आखिर मामला क्या है? इश्क सर चढ़ कर बोला है मुस्तफा का बरेली की सरजमीन से, और बरेली की सरजमीन से ये आवाज आती है, सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ है बेतनाही से है बरी, हैरान मेरे शाह मैं क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखर इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। आज वही इश्क है मुस्तफा का जो सर चढ़कर बोल रहा है, नजरों के सामने आस्ताना है। अब सैयदी सरकार अब्दुल रशीद अलैहिर्रहमा लेटे हुए हैं। आखिर मेरे मोहतरम इनका घर है बिहार में, कौन जानता है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब मुस्तफा का इश्क सर चढ़कर बोलता है, जब मुस्तफा की गुलामी में कोई बंदा आ जाता है, जब जिंदगी को वक्फ कर दिया करता है, तो फिर पूरी दुनिया उनके कदमों पर ला दी जाती है, पूरी दुनिया उनके कदमों में समेट दी जाती है। आज वही हुआ है। आज दुनिया के लोगों के खानदान के नामो निशान मिट गए हैं। आज दुनिया के लोगों के, आज हमारे बाप दादाओं के नामो निशान नहीं है। लेकिन देखिए जो मुस्तफा के इश्क में चला है, जो मुस्तफा के इश्क में चला है, जो मुस्तफा का नाम लेकर जिया है, जो मुस्तफा के खातिर अपने तलमन को कुर्बान किया है, दुनिया के लोग उनके आस्ताने पर आकर आज अपने माथे को टेक कर ये कह रहे हैं कि जो नबी के इश्क में जिंदा रहेगा, अल्लाह उनके नाम को जमीन की पस्तियों से उठाकर आसमान की बुलंदियों को पहुंचा देगा। मेरे मोहतरम अल्लाह नारे रिसालत मसलक के आला हजरत जिंदाबाद, से रशीदी जिंदाबाद, से रसीदी जिंदाबाद। बहुत अच्छा जो लोग भी मुस्तफा के इश्क में अगर जिएंगे, आपने देखा ना मखदूम अशरफ को, क्या वो कम बड़े लोग थे, उनके वो इतने बड़े इंसान थे ना कि उनकी बकरियां जब बांधी जाती थी ना, सोने की खूंटी में बांधी जाती थी, हुकूमत मिला था, सारा चीज मिल गया था, लेकिन मुस्तफा के इश्क का ऐसा नशा चढ़ाना सब छोड़ कर आ गए हैं कचौचा मुकद्दसा में। और आज दुनिया का जो इलाज ला इलाज हो जाता है, डॉक्टर जिसे अलविदा कह देते हैं, लोग उनके आस्थाने पर उनके नीर का पानी पीता है, शिफा पा जाता है। हमने कहा है गरीब नवाज, आपके आस्थाने में आखिर ये कौन बात है? ऐ मखदूम अशरफ, आपके आस्थाने में ये कौन बात है? ऐ अब्दुल रशीद अलैहिर्रहमा, आप लेटे हुए हैं, आपके आस्थाने से ऐसी कौन सी बातें हैं जिसको सुनकर आशिक इतना तड़पता है? आपके आस्थाने पर हजारों की भीड़ लगती है, आवाज आती है गुंबदो मीनार से, ऐ आसिफ रजा सुन, हमारे अंदर तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो जो मुस्तफा के इश्क को लेकर चला है, जो जो मुस्तफा के दीन को लेकर चला है, जो जो मुस्तफा के कानून को लेकर चला है, इस दुनिया में भी लाजवाब नजर आएगा, उस दुनिया में भी लाजवाब नजर आएगा। बरेली के ताजदार तक जो कहते हैं कैसे आकाओं का बंदा हो रजा, कैसे आकाओं का बंदा हो रजा, कैसे आकाओं का बंदा हो रजा, बोल वाले मेरे सरकारों के, सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ है बेतनाही से है बरी, हैरान मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। अरे ये इश्क मुस्तफ़ा का वो इश्क है जो सिद्दीक़ अकबर को सदाकत का बादशाह बना देता है। मुस्तफ़ा का इश्क वो इश्क है जो उमर फारूक आज़म को अदालत को हिम्मत और जवाबवर्दी और शुजाअत और ताकत का सबसे बड़ा बादशाह बना देता है। मुस्तफ़ा का इश्क वो इश्क है जो अली को शेर खुदा बना देता है। मुस्तफ़ा का इश्क वो इश्क है, कोई अब्दुल कादिर बनकर चमका है तो विलायत कुबरा के मकाम पर फारिग हो गया है। मुस्तफ़ा का इश्क वो इश्क है कि हिंदुस्तान में कितने आए कितने चले गए। मेरा गरीब नवाज मुस्तफ़ा के इश्क को सीने में बसाकर संजर की धरती से चला है। 812 बरस से जिस कुर्सी पर बैठा था, बैठा है, बैठा रहेगा। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। मुस्तफा का इश्क सब चढ़कर बोलता है, मुस्तफा का इश्क जब सब चढ़कर बोलता है दुनिया कहती है दीवाना है। मुस्तफा का इश्क सब चढ़कर बोलता है, दुनिया कहती है पागल है। मुस्तफा का इश्क सब चढ़कर बोलता है, दुनिया कहती है मजनू है। लेकिन तुझे पता नहीं वो लिल्लाहियत के उस मकाम पर है, वो फनासिर रसूल हो गया है, वो अल्लाह के तजल्लियात के पर्दों की ज़ियारत कर लिया है। अब वो दुनिया नहीं दिखती है, अब नजर किधर दिखाता है? अल्लाह अल्लाह नजर आता है। मुस्तफा का इश्क वो इश्क है जिसकी इसकी भट्टी में जब कोई जलता है अपने आप को, तपता है तो अपने आप को, तो परवरदिगार आलम की रहमतों की तजल्लियों की बारिश होने लगती है। दुनिया जिसको मजनू कहती है वो मुस्तफा का दीवाना हो जाता है। दुनिया जिसे नहीं समझ पाती है अल्लाह के रसूल के इश्क में जब
है। दुनिया जब उसे पागल कहती है, लेकिन वो पागल नहीं था, वो इंसान मजनून ही रहता है। वो तो मुस्तफा के इश्क में ऐसा खोता है, मुस्तफा की दीदार में ऐसा खोता है, दुनिया के जिस कोने पर नजर डालता है ऐसा फना होता है फनाफिर रसूल में, ऐसा फना होता है फनाफिल्लाह में। नजर जिधर दिखाए अल्लाह अल्लाह, नजर जिधर करे अल्लाह अल्लाह, नजर जिधर घुमाए अल्लाह अल्लाह। अब ये जालिम कहते हैं तुम जाते हो मज़ारों पर तो क्या मांगते हो? हमने कहा है जालिम जो मुस्तफा के इश्क में अपनी जिंदगी को कुर्बान कर देता है, अल्लाह उसे अपने तजल्लियात के पर्दों की ज़ियारत कराता है। जब उसके आस्ताने पर हम जाते हैं, कहते मौला हम तो गुनाहगार हैं, हम तो सियाकार हैं, हम तो बदकार हैं, हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है। लेकिन ये अब्दुल रशीद अलैहि रहमा लेते हुए है ना, ए परवरदिगार आलम, इनकी जात निराली है, इनकी बात निराली है, इनका खानदान निराला है। मौला मेरे अंदर वो ताकत और कुव्वत नहीं है मेरी बात तुम तक पहुंचे, लेकिन ये तो तेरा नेक बंदा है, इसके वसीले से दे दे, इसके जरिए से दे दे, इसके वसीले से हमारी किस्मत बदल दे। जब ये आवाज दिल की निकलती है अल्लाह तक पहुंचती है। यही तो अल्लाह कह रहा है वस्सालिहीन, सोलह की जमात जो सालिहीन के बारे में जिक्र किया गया है, सालिहीन की दामन को मजबूती से थाम लो, तुम यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहाँ भी कामयाब हो जाओगे। ये सालिहीन कौन है? ये वही लोग हैं जो अपनी जिंदगी के हर लम्हे को अल्लाह की रजा की खातिर कुर्बान किया करते हैं, दीन मुस्तफा के खातिर कुर्बान किया करते हैं। अल्लाह उसके नामों को बुलंद कर देता है। मेरे मोहतरम, कहने का मकसद ये है हम अपनी जिंदगी के हर लम्हे को मुस्तफा के दीन की खातिर कुर्बान करें, हम अपनी जिंदगी के हर लम्हे को मुस्तफा की रजा की खातिर कुर्बान करें। हम इस दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे, उस दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे। मेरी जिंदगी का मकसद तरीके की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। हुसैन यूं ही नहीं सर कटा के सोए हैं, जमाना सोया था उसको जगा के सोए हैं। हुसैन का सर है अगर फातिमा की चादर पे, जमीन पे अर्शे मुअल्ला बिछा के सोए हैं। हुसैन का सगर है अगर फातिमा की चादर पे, जमीन पे अर्शे मुअल्ला बिछा के सोए हैं। बस एक शेर में कह रहा हूँ, अब बात मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल कर रहा हूँ, वक्त हमारे पास कम है। फिर आप देखेंगे साहिब सज्जादा के वो खूबसूरत बयानात मोतियों के जैसे बिखरेंगे, और फिर आप अपने कुलूब अज़हान में उसे खूबसूरत सी जगह इनायत फरमाएंगे। शायर कहता है मेरे दुश्मन को इसी बात की दुश्वारी है, ऐसा बैठे हुए मेरे दुश्मन को इसी बात की दुश्वारी है, हाथ कटकर भी मेरे पास अलमदारी है। मेरे दुश्मन को इसी बात की दुश्वारी है, हाथ कटकर भी मेरे पास अलमदारी है। तुम इन्हें लाए हो, तुम इन्हें लाए हो अब्बास से लड़ने के लिए, तुम इन्हें लाए हो अब्बास से लड़ने के लिए, तुम इन्हें लाए हो अब्बास से लड़ने के लिए। इतने लश्कर पे तो असगर की हंसी भारी है। तुम इन्हें लाए हो अब्बास से लड़ने के लिए, इतने लश्कर पे तो असगर की हंसी भारी है। और अपने खुतबों की रसन लेके चली है ज़ैनब, रसन कहते हैं रस्सी को, अपने खुतबों की रसन लेके चली है ज़ैनब। ये घड़ी तालिबे बैयत पे बहुत भारी है, ये खबर खास है, ये खबर खास है। सब शाम के अखबारों में आज शब्बीर के कातिल की गिरफ्तारी है, ये खबर खास है। सब शाम के अखबारों में आज शब्बीर के कातिल की गिरफ्तारी है। कहा हुसैन ने जाओ कोई गया भी नहीं, गलत नहीं है जो कह दूं कोई हिला भी नहीं। अली की बेटी ने खुतबों से वो जिहाद किया, है ना, बात अली की आ रही है, अब चुप रहने का मकाम नहीं है। अली की बेटी ने, अली की बेटी ने, और अली का एहसान है तो बोलेंगे, अली की बेटी ने खुतबों से वो जिहाद किया, कोई बचा भी नहीं और कोई मरा भी नहीं। अली की बेटी ने खुतबों से वो जिहाद किया, कोई बचा भी नहीं और कोई मरा भी नहीं। अली और उलमाए किराम बैठे हुए हैं, सुनिएगा क्या कहते हैं, ये मुअज़्ज़ज़ शोराए किराम है, उसे नसीब है आगोश शाह का मिंबर, उसे नसीब है आगोश शाह का मिंबर, उसे नसीब है सबसे कम उम्र के सबसे बड़े बादशाह की बात होगी, उसे नसीब है आगोश शाह का मिंबर। नाहिद भाई, उसे नसीब है आगोश शाह का मिंबर। अजब खतीब है असगर जो बोलता है, उसे नसीब है आगोश शाह का मिंबर। अजब खतीब है असगर जो बोलता है। मैं शरह खुतबे असगर लिखूं तो कैसे लिखूं, मैं शरह खुतबे असगर लिखूं तो कैसे लिखूं, लुगत में उसके तबस्सुम का तर्जमा ही नहीं। मैं शरह